Hello students, now welcome to the Rashmi Singh classes. Now today we are going to complete the chapter from trade to territory, third part. In first two parts we have complete the reasons how the British came as a trader and established their empire and how they expand their territory. So we were discussing about how they were able to expand their territory. They expanded their territory with various methods. So we have done the first, they put one resident in the local rulers court and the subsidiary alliances. And in second part we have done about the direct conquest. मराठास एंड मैसूर वाला केस जो हमने किया था वो डायरेक्ट कंक्वेस्ट ऑन द किंगडम एंड अनेक्स दीज किंगडम टू देयर एम्पायर. उसमें दो चीज़ें रह गई थी, द मेथड्स ऑफ एनेक्सिंग द एम्पायर, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. Doctrine of lapse is devised by the Lord Dalhousie, and according to this, if the king or ruler died without any male child, then automatically after his death the kingdom would be lapsed and the kingdom annexed by the Britishers. अगर कोई राजा मर जाता है, मेल चाइल्ड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसकी डेथ के बाद उसकी किंगडम एनेक्स हो जाएगी इन द ब्रिटिश एम्पायर. And on the basis of doctrine of lapse, Satara, Nagpur, Jhansi, Sambalpur, these states were annexed by the Britishers. And the second is maladministration. Maladministration means this was the allegation which was imposed on the ruler कि he was not capable to administer his empire. Means the corrupt and maladministration का एक एलिगेशन लगा के द ब्रिटिशर्स डिपोज द रूलर और नवाब एंड एनेक्स देयर किंगडम टू देयर एम्पायर. क्लियर, ये दो मेथड्स रह रहे थे. नाउ उसके बाद ना ब्रिटिशर्स सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन. न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने कैसे सेटअप किया? बिकॉज वी नो नाउ दे हैव द मास्टर ऑफ द वास्ट एरिया and they have to do administer this area. For administrative purpose they divide the entire territory which is under the control of Britishers into three parts: Bombay, Madras and Bombay. And these three places were known as the presidencies. These were known as the presidencies, and each presidency was governed by the governor. ये कौन गवर्न करता था हर प्रेसिडेंसी को? गवर्नर. एंड सुप्रीम हेड वॉज नोन एज गवर्नर जनरल. और इन तीनों गवर्नर्स के ऊपर जो सुप्रीम हेड था ही वॉज नोन एज गवर्नर जनरल. एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ दैट टाइम वॉज वेरेन हेस्टिंग. And Warren Hastings did some changes in the administration, especially in the two spheres. Number one is spheres of justice and second the sphere of army. So first we'll take the sphere of justice. Now the sphere of justice they established the two types of court in each district: criminal court and सिविल कोड. फौजदारी कोड जिसको कहते हैं और दीवानी कोड. एंड ये क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, डिकॉइटी हो गई, मर्डर हो गया, उनमें डील करते हैं. एंड ये मनी से रिलेटेड मैटर्स और मैरिज एक्ट और मतलब मनमुटाव जो हो जाता है मकान मालिक और टेनेंट्स के बीच में, वो सब केसेस डील करने के लिए सिविल कोड. ठीक है. सिविल कोड्स वर इंटरप्रेटेड बाय द मौलवीज एंड पंडित्स. सिविल कोड के अंदर मौलवीज और पंडित होते थे, वो इंटरप्रेटेड द इंडियन लॉ फॉर द यूरोपियन कलेक्टर्स. क्लियर. एंड द क्रिमिनल कोड्स वर स्टिल अंडर द काजी एंड मुफ्ती. तो हु वाज काजी? काजी जो जजमेंट दिया करते थे दे वर नोन एज काजी. एंड मुफ्ती वो होते थे जो उस जजमेंट को लोगों तक पहुंचाने का काम किया करते थे. क्लियर. And these काजी and मुफ्ती were supervised by the collectors. ये काम तो independently करते थे but they were supervised by the collectors. Clear? Maulvis and Pandits, they interpreted the law for the civil courts, and criminal courts
were interpreted by the interpreted by the Qazi and Mufti. Clear? Now there was a big challenge in the interpretation of the law, because Hindu Pandits, they belongs to the different area, and their Dharam Shastras were also different. The Pandits of North India and the Pandit of South India, if they give the interpretation of law or judgment दिया करते थे, they were different. मतलब एक ही आदमी ने एक क्राइम किया है, बट द जजमेंट वर डिफरेंट बिकॉज द पंडित्स बिलोंग्स टू द डिफरेंट एरिया. तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि एक ही क्राइम के लिए दो अलग अलग जजमेंट हम कैसे बियर कर सकते हैं. तो उन्होंने टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी, उन्होंने ये कहा कि 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट. उन्होंने 11 पंडितों को बोला कि आप मिलके एक पूरी डाइजेस्ट बनाइए जिसके अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट द लॉ और गिव द जजमेंट in 1778. Clear? And in 1778, and same thing of the Muslim law also compiled in 1778, and the Hindu law was compiled in 1775. Clear? ध्यान रखिएगा, मैंने गलती से इसको 1778 बोल दिया. Hindu Pandits compiled a digest in 1775 and Muslim law also compiled in 1778. And these both digest translated into English, ताकि जो collectors हैं और जो Britishers हैं they can easily understand these laws. And after that the regulating act was passed. According to this act, Supreme Court was established in Calcutta. कैलकटा में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया एंड 1773 में, एंड सदर निजामत कोर्ट वाज आल्सो इस्टेब्लिश. दिस इज द क्रिमिनल कोर्ट. क्रिमिनल कोर्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है. एंड द कलेक्टर्स वर गिवन द एनॉमरस पावर एट दैट टाइम. दे वर गिवन द पावर टू कलेक्टेड द टैक्सेस एंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करते थे? विद द हेल्प ऑफ जजेस, पुलिस एंड दरोगास. उनकी हेल्प से ये लॉ एंड ऑर्डर उस एरिया में मेंटेन किया करते थे. तो एक कलेक्टर की भी एक पावरफुल पोस्ट हो गई और एक कलेक्ट्रेट एक पावरफुल ऑफिस हो गया इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स. क्लियर? Now this is all about the spheres in justice. Now we'll take the spheres of army. इसमें इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए? Before the Britishers, the Mughal, will talk about the मुगल सल्तनत. ठीक है, मुगल सल्तनत या मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे. In the Mughal time, the army was consist of two type of people. Number one is cavalry and number two is infantry. Cavalry means द घुड़सवार जो घोड़े पे रहते थे, एंड इन्फेंट्री मीन्स पैदल, जो पैदल चलने वाले थे. एंड बोथ वर ट्रेंड विद आर्चरी एंड हाउ टू यूज द सोर्ड. तलवारबाजी में और तीरंदाजी में दोनों को ट्रेंड किया जाता था. बट द मुगल्स गेव द प्रॉपर अटेंशन ओनली ऑन द कैवेलरी. उनके मतलब से वो चाहते थे कि ज़्यादा जो हम एम्फसाइज कर रहे हैं वो हम कैवेलरी पे कर रहे हैं, नॉट ऑन द इन्फेंट्री, क्योंकि इन्फेंट्री वर ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द मनसबदार एंड ज़मींदार एट द टाइम ऑफ नीड. जब ज़रूरत होती थी, दूसरे राजा ने अटैक किया तो वो जो उनके अंडर में ज़मींदार होते थे, मनसबदार होते थे, उनसे कहते थे, और वो जो पीजेंट्स होते थे उनको प्रोवाइड कर देते थे एज अ इन्फेंट्री सोल्जर्स. तो उनको लगता था कि इसमें हमें ज़्यादा पैसा या ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. बट आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, व्हेन द रीजनल किंगडम्स केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो उसके सक्सेसर्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया, जैसे कि अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया. दे रिक्रूटिंग द पीजेंट्स एज अ सोल्जर्स. उन्होंने जो पीजेंट्स होते थे काम करने वाले खेतों पे, दे रिक्रूटिंग देम एज अ सोल्जर्स एंड गेव देम प्रॉपर ट्रेनिंग, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी. एंड द सेम मेथड वाज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश कंपनी ऑल्सो. उन्होंने भी इन्हीं छोटे मोटे जो पीजेंट्स होते थे उनको
ट्रेनिंग देकर अपनी आर्मी के अंदर एडमिट करना शुरू कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो अडॉप्टेड द सेम एंड दीज पर्सन्स वर नोन एज सिपॉय। सिपॉय मीन्स सिपाही, हिंदी का वर्ड है। हिंदी में जो हमारे मुगल एम्पायर्स बोलते थे सिपाही, एंड सिपाही वर्ड को ही ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपॉय बोलने लग गया। एंड इज दिस टाइम द इन्फेंट्री बिकम मोर पावरफुल। क्यों? इस समय कंपनी वॉज फाइटिंग विद द म्यांमार एंड अफगानिस्तान एंड इजिप्ट। म्यांमार का उस समय नाम था बर्मा, तो वो बर्मा से, अफगानिस्तान से और इजिप्ट से उनकी लड़ाई चल रही थी। एंड इन दीज एरियाज इन्फेंट्री वॉज वेरी यूजफुल एंड दे वर द सोल्जर्स वर इक्विप्ड विद द मस्कट्स एंड मैचलॉक्स। दीज वर द टाइप ऑफ गन्स जिससे उनको इक्विप्ड किया जाता था, एंड दे वर प्रॉपरली ट्रेन टू यूज दिस मैचलॉक्स एंड गन्स, कैसे उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन्फेंट्री जो पहले मुगल टाइम में कैवेलरी वॉज सो इम्पॉर्टेंट, बट नाउ द इन्फेंट्री वॉज इम्पॉर्टेंट और डोमिनेट द कैवेलरी। कैवेलरी की इस समय तक इतनी ज़रूरत नहीं थी। क्लियर? एंड जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दे ट्रेन देयर सोल्जर्स इन यूरोपियन स्टाइल। उनको डिसिप्लिन, हर चीज़ सिखाई जाती थी और ताकि दे रेगुलेट देयर लाइफ। बट and they recruited the peasants from any caste and religion। कोई ध्यान नहीं रखते थे कि ये मुस्लिम है या हिंदू है या लोअर कम्युनिटी का है या अपर कम्युनिटी का है। they just recruited these सिपाहीज, ये सिपॉयज। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम होती थी, समटाइम्स द इमोशनल और रीजनल सेंटिमेंट्स अटैक ऑन द सिपॉयज। ये हम आगे बढ़ेंगे कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ किस वजह से हुआ था, बिकॉज ऑफ द र्यूमर कि हिंदू और मुस्लिम दोनों उनकी आर्मी में थे, एंड द र्यूमर वॉज स्प्रेड दैट द कार्ट्रिजेस ऑफ दीज राइफल्स वर ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग। तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो कभी कभी ऐसी पोजीशंस भी आती थी इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स की उनको इस रिवोल्ट को फेस करना होता था। इस रिवोल्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने पढ़ लिया। इन्फेंट्री वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम एंड कम्युनिटी फीलिंग वॉज इग्नोर्ड। कम्युनिटी और रिलीजियस फीलिंग वॉज इग्नोर्ड एट दैट टाइम। एंड व्हाट वॉज द कंक्लूजन? कंक्लूजन क्या निकला? जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है 3 पार्ट्स में, इसको अगर हम कंक्लूड करेंगे तो क्या कंक्लूजन निकला कि ब्रिटिशर्स केम एज अ ट्रेडर एंड बिकेम द मास्टर ऑफ आवर कंपनी। उसके पीछे कई रीजंस थे। नंबर 1, वी आर नॉट यूनाइटेड, मीन्स हमारे जो इंडियन रूलर्स थे दे वर नॉट यूनाइटेड एट दैट टाइम। क्लियर? एंड दे डिड नॉट हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की मदद भी नहीं कर सकते। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग दे हेल्प द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे। हमने देखा सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बिकॉज ऑफ मीर जाफर। क्लियर? एंड टीपू सुल्तान वॉज डिफीटेड बिकॉज ऑफ मराठा एंड द नवाब ऑफ हैदराबाद। तो ये ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द इंडियन रूलर्स। एंड जो आपके एक और उस समय हुआ, द स्टीम इंजन या स्टीम इंजन ही कह दो उसको, वॉज इन्वेंटेड एट दैट टाइम। न्यू टेक्नोलॉजी अराइव्ड एंड जो पहले बोट्स होती थी, जो शिप्स होते थे वो हाथ से चलाए जाते थे मैनुअली, अब वो स्टीम इंजन से चलने लग गए। तो द जर्नी बिटवीन द इंग्लैंड एंड इंडिया वॉज कंप्लीटेड इन 7 or 8 months, नाउ कंप्लीटेड ओनली इन 2 or 3 weeks। तो अब इससे क्या हो गया? मोर एंड मोर पीपल कम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग पर्पज एंड देयर फैमिली ऑल्सो कम्स। अब उनको ये नहीं होता था कि उनको घर की याद आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, वो घर वाले भी, उनके फैमिली मेम्बर्स भी फटाफट मिलने आ जाते थे। फॉर दीज रीजन्स दे रूल्ड ओवर इंडिया फॉर 200 years। और सबसे बड़ी थी द लीडरशिप क्वालिटी वॉज वेरी गुड इन ब्रिटिशर्स, जो हमारे इंडियन रूलर्स लैक करते थे।
So these were the reasons, that's why they ruled over us for 200 years. So in this way we complete this chapter from trade to territory. Clear? इसमें हमने क्या पढ़ा बेटा? The doctrine of lapse means if the ruler died without male child, तो उसकी जो kingdom है annexed by the Britishers after the death of ruler. And maladministration means the corrupt or bad administration. Allegation लगा के the ruler was deposed and the kingdom was annexed by the Britishers. And setting up a new administration, the whole empire was divided into 3 parts: Bombay, Madras and Bombay, Madras and Calcutta. Bombay, Madras and Calcutta. This is Calcutta. These were the 3 presidencies, Bombay, Madras and Calcutta. ये क्यों डिवाइड की थी? फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. क्लियर? फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस. और Warren Hastings was the first Governor General and he did the changes in the administration. First change was in the sphere of justice. Criminal court and civil courts were established in every district, and some challenges they had faced कि हिंदू पंडित्स दे बिलोंग्स टू द डिफरेंट एरिया एंड देयर रिलीजियस बुक्स या धर्मशास्त्रास वर डिफरेंट. तो उनको ये बोला गया टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट इन 1775. ठीक है. और इसी तरह मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंपाइल्ड एंड बोथ वर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फॉर द कलेक्टर्स या जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनके लिए. एंड एट दैट टाइम द कलेक्टर वॉज गिवन द एनॉमरस पावर. बहुत सारी पावर उसको दी गई. ठीक है. एक कलेक्ट्रेट, एक हमारा एक नया ऑफिस हो गया, पावरफुल ऑफिस. एंड द पावर उसकी थी टू कलेक्टेड द टैक्सेस एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर. अब इन द स्फीयर्स ऑफ आर्मी, मुगल टाइम में द मोर इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द कैवेलरी एंड द लेस इम्पोर्टेंट वॉज इन्फेंट्री पीपल. इन्फेंट्री पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था. एंड द मुगल सक्सेसर्स आफ्टर द डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर, द मुगल सक्सेसर्स रिक्रूटिंग द पीजेंट्स एज द सोल्जर्स, एंड द सेम थिंग वॉज adopted by the East India Company, and these peoples were known as sepoys. Clear? And infantry more important in this time because the company was fighting with the Burma, अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, और वहाँ पे इन्फेंट्री ही यूजफुल थी. एंड इन्फेंट्री सोल्जर्स वर इक्विप्ड बाय द मैचलॉक्स एंड मस्कट्स. ठीक है. अब है लेकिन कई बार क्या प्रॉब्लम आती थी? रिलीजियस फीलिंग्स, क्योंकि वो जो भी सिपाही रिक्रूट किया करते थे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, कलर, क्रीड. क्लियर? तो कई बार सेंटिमेंट्स अटैक कर जाते थे, जैसे मैंने आपको 1857 का रिवोल्ट बताया था अभी. ठीक है. एंड द कंक्लूजन यही है कि बिकॉज एट दैट टाइम द इंडियन रूलर्स वर नॉट यूनाइटेड एंड द लैक ऑफ गुड लीडरशिप क्वालिटी. यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं थी. ठीक है. एंड इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग द लोकल रूलर्स, द रूलर्स हेल्प द ब्रिटिशर्स एंड न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी अराइव्ड इन इंडिया. तो जिसकी वजह से जो आपका ट्रैवलिंग टाइम था बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया दैट वाज रिड्यूस्ड. तो इसकी वजह से दे वर एबल टू रूल्ड ओवर 200 years ऑन इंडिया. क्लियर? तो वी हैव कंप्लीट द चैप्टर. इफ अगर आपको समझ में आ गया है अच्छे से, देन लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा बेटा कि आपको समझ में आया या नहीं आया है, तो हम इसी चैप्टर को दोबारा से एक बार आपको पढ़ाएंगे. ओके, थैंक यू.